Good afternoon, everyone. Okay, today we proceed for pelvic organ prolapse and urinary problems in gynec. Okay, yesterday we learned about the supports of uterus. Quick revision 5 minutes. The uterus is normally placed in anteverted and anteflexed position between the bladder and rectum. Uterus hold in position by three tier system: upper tier, middle tier, and lower tier. Upper tier supports are endopelvic fascia, round ligament, and the broad ligament. Middle tier, pubocervical ligament anteriorly, transcervical ligament laterally, and uterosacral ligament posteriorly. Inferior tier by the pelvic floor muscle. If there is any problem to any of this tier system, it leads to weakening of the these muscles and leads to prolapse. Now, the clinical factors. Why prolapse is occurred? So there are predisposing factors are that leads to weakening of the muscle. They are mainly trauma of the vaginal delivery causing injury to tear or break into the ligaments and the muscles. So main predisposing factor that leads to prolapse is traumatic vaginal delivery or the support not properly given during the vaginal delivery. Leads to tear and break in the ligaments, endopelvic fascia, levator muscles, perineal body, and affection of the nerve and muscle damage. Sometimes, very rarely, there may be the congenital weakening of this support system. So, what happens? The patient have the multiple vaginal deliveries or the traumatic vaginal deliveries that already made the weakening of this muscle and the ligaments. Now, if there is a certain aggravating factors happens, it give rise to the symptoms of prolapse. So already weakening is there, and amongst that, in the advanced age group, in a postmenopausal age group, there is a low estrogen. So further it makes the weakening of the muscle and ligament, increase intra-abdominal pressure like chronic cough, chronic sneezing, chronic lung disease, जिसमें बारी बारी इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है. Certain occupations like a weightlifting, like in farmers or in a porter, patient may have undernutrition or very obese patient, or certain disease like a fibroid adenomyosis that increase the weight of the uterus, so it becomes aggravating factor to this weakened muscle. So these are the factors that leads to the prolapse. Now, degree of prolapse. How can you differentiate the degree of prolapse? द फर्स्ट डिग्री इज, पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्लिनिक में हम कैसे इवेल्युएट करते हैं. तो फर्स्ट डिग्री प्रोलेप्स मीन्स 1 सेंटीमीटर और मोर अबव द हाइमेन रिंग. सेकेंड डिग्री मीन्स 1 सेंटीमीटर बिलो द हाइमेन रिंग. थर्ड डिग्री मीन्स 1 सेंटीमीटर बियॉन्ड द हाइमेन. एंड फोर्थ इज कंप्लीट इवर्जन ऑफ द वजाइना. ये तो बुक की बात हुई, बट हाउ वी असेस इन द क्लिनिक. तो क्लिनिक में जब भी पेशेंट आता है तो आपको ही वो बोलेगा, तो उनकी हिस्ट्री के हिसाब से ही आप इवेल्युएट कर सकते हैं वेदर इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिग्री. पेशेंट बोलेगा कि जब मैं स्नीजिंग करती हूँ या जब मैं मुझे कफ आता है या जब मुझे प्रेशर आता है तो समथिंग कमिंग आउट पर वजाइना. ऐसे नहीं होता है सिर्फ ओनली ऑन स्नीजिंग एंड कफिंग, देन इट इज ग्रेड 1 prolapse. ग्रेड 2 मीन्स थोड़ा थोड़ा बाहर दिखता ही है, इज ग्रेड 2 मीन्स अप टू द इंट्रोइटस.
Grade 3 means outside the introitus, तो वो बाहर रहता है बट फिंगर से अंदर चला जाता है. और ग्रेड 4 मीन्स कंप्लीट इवर्जन ऑफ यूट्रस, कंप्लीट एक्सपल्शन ऑफ यूट्रस विथ इवर्जन ऑफ वजाइना. पूरा का पूरा बाहर ही आ गया है और कैसे भी करके वो अंदर नहीं जाता है. दैट इज ग्रेड 4. तो क्लिनिकली हम ऐसे असेस करते हैं. ग्रेड 1 में समथिंग कमिंग पर वजाइनम ऑन स्ट्रेस और वेन एवर देर इज इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर. ग्रेड 2 मीन्स वो बाहर ही थोड़ा थोड़ा रहता है. ग्रेड 3 मीन्स seen above the outside but can be inserted with finger. Grade 4 is complete eversion. So these are the degrees of prolapse. See the figure, you will understood. जो स्टेज 0 है मीन्स नॉर्मल है, स्टेज 1 थोड़ा खिसा, स्टेज 3 थोड़ा खिसा, स्टेज 4 कंप्लीटली आउट आ गया, बाहर आ गया. Symptoms, how they present to you. Feeling of something coming out from the vagina. Due to this, there may be the backache and dragging pain, dyspareunia. Now, prolapse sometimes associated with cystocele and rectocele. What do you mean by cystocele and rectocele? Suppose this is uterus, this is bladder, and this is rectum. Now, sometimes along with uterus, bladder is also descend down. Bladder prolapse is called cystocele and rectal prolapse is called rectocele. So it may sometimes associated with cystocele and rectocele. So if patient having cystocele means bladder coming down, patient have difficulty in urine, incomplete evacuation of the urine, increase urgency, frequency, painful micturition, and on examination you can see the bulge of the bladder in vagina. While in the rectocele, difficulty in passing the stool. So you can see the bulge of rectum protruding into the posterior vaginal wall. Excessive white or blood stained vaginal discharge may be there in case of grade 4 prolapse. So this is the presentation, how they present prolapse case. Management. First, preventative, because it's a preventative disease. So proper adequate antenatal intranatal care to avoid injury to the supporting structures of the uterus during vaginal delivery. Adequate postnatal care, that is pelvic floor exercises by squeezing pelvic floor muscles. Avoid strenuous activities like chronic cough, constipation and heavy weight lifting. And avoid future pregnancy. So these are the preventative measures के proper antenatal care लो, intranatal care लो, avoid the trauma during the birth, during the childbirth. After delivery, carry out postnatal exercises, post pelvic floor exercises to strengthen the pelvic floor muscles. Avoid aggravating factors like chronic cough, constipation and heavy weight lifting. So it may protect to progress from the prolapse. Now the conservative management. If up to grade 1 and grade 2 prolapse, all the prolapse cases are not the indication of surgery. As we know, there is a weakening and muscle is coming down from its site. So no medicine will going to be work. Here only the surgery will work. But up to grade 1 and grade 2, if the patient do proper pelvic floor muscle tightening exercise, we can extend the years of surgery.
suppose very young patient, so she may not like to go for hysterectomy. So ऐसे cases में if she do the exercise, pelvic floor muscle exercise, so we can prevent from further progress. The pelvic floor muscle exercises is termed as Kegel exercise. What is Kegel exercise? It is called pelvic floor muscle tightening exercises. Here, relax the pelvic floor muscle and count for 3 to 4 seconds. Tighten, relax, tighten, relax. So how will you explain to the patient? Explain the patient in such a way that if you go into the market and if you want to go to the washroom and washroom is not available, how you control it? So same feeling, same imagine. Take a deep breath, tighten the pelvic floor muscle, hold it for 3 to 4 seconds and then relax. Again repeat the same. Tighten, hold for 3 to 4 seconds and relax the muscle. This is to be repeated 10 times, 3 times a day. If it can do for lifetime, it strengthens the pelvic floor muscle and prevent the progress of prolapse. So the surgery could be preventable. Everybody understood Kegel exercise? This is the importance of Kegel exercise. For that, patient can do at home, nothing, no, not required to go to the physiotherapist. Then the pessary treatment. Different types of the pessaries are. Pessary means one device that is to be inserted in the vagina, so it prevents the coming out of the prolapse. But it is not suitable to everyone. Different types of the pessaries are available. Amongst that, ring pessary are very common. Ring pessary is like a चूड़ी, जो चूड़ियाँ आती है लेडीज पहनती है, ऐसे सिलिकॉन की बनी एक रिंग जैसा आता है. रिंग पैसरीज आर वेरी कॉमन बिकॉज वो दूसरी बहुत सारी पैसरी आती है, ग्रुनेहंग पैसरी एंड वेरी पैसरीज आर अवेलेबल, बट फॉर दैट patient needs the doctor support. While ring pessary, once if you understood, if that is properly understood by the patient, they can wear and remove by her own self. तो रिंग पैसरी जैसा ऐसा एक आता है, बस सिलिकॉन का बना हुआ. तो पेशेंट को बोलने का कि प्रॉपरली क्लीन द हैंड्स, then dip that pessary into Savlon overnight and then insert into the vagina. So it will hold like a चूड़ी जैसा अंदर होगा, तो यूट्रस वहाँ पे रेस्ट करेगा, सो इट वोंट कम आउट. फिर रात को सोते समय रिमूव, अगेन वॉश करके सेवलॉन में रख देने का, सुबह में पहन लेने का. तो ऐसा पेशेंट कर सकता है इफ दे वॉन्ट गो फॉर द सर्जरी. It is mainly used for the very aged patient that is not fit for surgery. So ring pessaries are very commonly used. And then surgical management is hysterectomy. So this is all about the prolapse. All are you understood? Dr. Prerna? Hello? Okay. Any questions or move further for
urinary gynec problems. We will move to the next topic. Dr. Prerna? Dr. Prerna, okay. Move to the next topic. डॉक्टर सुरुचि, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? अगर मैंने देखा कि आप लेफ्ट हो गए थे, तो प्रोलेप्स का ख़त्म किया है, तो अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, और देन we can move to the next topic, that is the urinary problems in gynec. Dr. Suruchi, you want to ask any question? Okay. Now the urinary problems in gynec. There are main two units, bladder and urethra. So bladder volume is 250 ml. जब 250 ml फील होती है ब्लेडर, देन पेशेंट फील सेंसेशन ऑफ ब्लेडर फीलिंग, एंड जनरल कैपेसिटी ऑफ ब्लेडर इज 500 ml. First, we will talk about urinary incontinence. That is the involuntary loss of urine. Risk factors for developing SUI, that is stress urinary incontinence, means जब भी इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, like laughing, sneezing, coughing, there is a leakage of urine happens without consciousness. पेशेंट नहीं चाहता है तो भी थोड़ा लीक हो जाता है यूरिन का. So it is called SUI, stress urinary incontinence. It could be due to developmental weakness. So जो यूरिनरी यूरेथ्रल मीएटस और यूरिनरी ब्लेडर के म्यूकोजा को सपोर्ट करते हैं, उसमें वीकनेस हो जन्म से ही होती है, या इट कुड बी ड्यू टू चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा, प्रेगनेंसी, इन पोस्ट मेनोपोजल ड्यू टू एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, advanced age group, and obesity. These are the risk factors where it leads to the SUI, that is called stress urinary incontinence. Symptoms: escape of urine with coughing, sneezing, or laughing. Grade: first grade is on coughing or sneezing, means it is same like a prolapse, it is graded. So first grade means leakage occurs on coughing और स्नीजिंग. जब भी इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, देन इट लीड्स टू लीकेज ऑफ यूरिन. दैट इज द फर्स्ट ग्रेड. सेकंड ग्रेड, लीकेज ऑफ यूरिन अकर्स विथ माइल्ड एक्सरसाइज, थोड़ा एक्सरसाइज करने से लीकेज होता है. और ग्रेड 3 मीन्स लीकेज ऑफ यूरिन अकर्स इवन चेंज विथ पोस्चर, सोक से बैठने से और बैठने से सोने, जस्ट चेंजिंग द पोस्चर इट लीड्स टू लीकेज ऑफ यूरिन. So this is how we 3 grades of SUI are there. First grade, leakage occur on coughing or sneezing. Second grade, leakage occurs on mild exercise. And third grade, it occurs along with change of posture. Treatment: avoid the childbirth trauma, means avoid the preventative factors, avoid the aggravating factors, avoid the childbirth trauma, proper vaginal delivery by the expert, if obesity, weight reduction, treatment of chronic conditions like the cough, sneezing. Curative is conservative में pelvic floor muscle exercise, that is Kegel exercise, that we already learned in prolapse. Properly understood what is Kegel?
inhale, squeeze all the perineal muscles, hold it for 3 to 4 seconds, and then relax on the count of 3 to 5. Repeat again. So this is to be done 10 times a day, means 10 times in a one session, 3 times a day. Drugs, if the postmenopausal, if you're expecting estrogen deficiency, Evalon cream. Check for associated UTI, because sometimes urinary tract infection can also lead to the SUI. So if get the urine routine microbe, if the infection bacteria present in the urine, give the proper antibiotic. Now overactive bladder. Causative factors are, it could be idiopathic, psychosomatic and neurological disease. As we know, sometimes due to stress, anxiety, patient may have to go to the washroom, repeat. It's like a psychological condition. But sometimes it remains for long time, then it becomes the overactive bladder. Means patient have loss of urine, patient has to go to the washroom without any prior urge to the urine. So there is a urgency is there, and as well as increased frequency. Increased urgency and frequency more than 8 times a day. ट्रीटमेंट इज ब्लेडर रीट्रेनिंग, मीन्स पेशेंट को ब्लेडर को रीट्रेन करना पड़ेगा, बिकॉज समटाइम्स इन एंजाइटी समटाइम्स इट इज टेकन एज अ नॉर्मल, बट व्हेन इट बिकम्स कंटिन्यूअसली, देन counseling of the patient is done and bladder retraining is required. So in bladder retraining, advise the patient to avoid the urine by keeping the alarm. Means at a 2 hour she will go and pass the urine, then gradually increase the time. उसको अर्ज है कि सेंसेशन है कि नहीं है वॉशरूम जाने का, अब at every 2 hours, then at every 3 hours. Avoid the caffeine drinks, कॉफी टी ऐसा नहीं पीने का, caffeinated drinks. So bladder retraining first. Along with patient को symptoms है तो oxybutynin 5 milligram 1 BD for 10 days. Very well response with oxybutynin. ट्रोपान आता है, उसका ट्रेड नेम मार्केट में इट इज अवेलेबल इन द ट्रोपान 5 milligram 1 BD, दैट इज ऑक्सीब्यूटिनिन फॉर 5 to 10 days के लिए आप दे सकते हो. बट ओनली साइड इफेक्ट विथ ऑक्सीब्यूटिनिन इज ड्राई माउथ. पेशेंट को सिवियर ड्राइनेस ऑफ माउथ रहेगा, तो पेशेंट को बोलने का ऐसा होगा, बट चिंता मत करना, इट विल ग्रेजुअली गो डिसअपियर हो जाएगा. तो ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन विथ ऑक्सीब्यूटिनिन इज ग्लोकोमा, बिकॉज इट इंक्रीज द आई प्रेशर. सो ये पूछने का मत भूलने का, पेशेंट को अगर झामर जो बोलते हैं ग्लोकोमा है तो ऑक्सीब्यूटिनिन इज स्ट्रांगली कॉन्ट्राइंडिकेटेड. तो अगर आप देते हो तो वो पेशेंट को पूछ के ही देने का. न्यूअर ड्रग्स में टॉल्टेरिडीन, टॉल्यूराइड आती है 2 milligram 1 BD for 5 to 10 days. So mostly we are using oxybutynin or the tolteridine for overactive bladder. Even if you give for only 5 days, most of the patient will recover if it is only psychological disorder. If the patient having nocturia, night को बारी बारी जाना होता है, then imipramine 10 milligram at a bad time. So this about the SUI and the overactive bladder. Clear? Have any doubt, Dr. Prerna and Suruchi? Hello? Properly understood SUI and treatment of overactive bladder?
Dr. Suruchi, Dr. Prerna. Okay, any questions you want to ask? Hmm. 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 हाँ देखिए, ओके, देखिए कि जिसमें डायबिटिक है तो डायबिटिक ऑलरेडी लीड्स टू द ऑल्टर्ड ऑस्मोटिक रेगुलेशन ऑफ द बॉडी। तो डायबिटीज की वजह से पोलीयूरिया होता है एक्चुअली में। तो फर्स्ट तो ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज शुड बी देयर। अगर उसका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है और आप ये ट्रीटमेंट दोगे तो इट वोंट वर्क। इट इज ओनली वर्क टू कॉन्ट्रैक्ट द ब्लेडर मसल जो वीक हो गए हैं ड्यू टू सम स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से। क्या होता है ना कि ब्लेडर के जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, तो उसको रिलैक्स करता है। लाइक हमको किसी ने मारा है या किसी का लगा है तो हम कैसे मसल रिलैक्सन लेते हैं बॉडी के लिए। इट इज सेम लाइक फॉर ब्लेडर, कि अगर किसी को उसको ड्यू टू सर्टेन रीजंस ब्लेडर के मसल कॉन्ट्रेक्शन में चले गए हैं देन इट्स गोइंग टू बी वर्क। अगर ओल्ड एज में डायबिटिक की वजह से उसको पोलीयूरिया है तो इट वोंट वर्क। बट इन न्यूरोजेनिक डिसीज लाइक सर्टेन को ऐसा होता है, तो अगर उसको ग्लोकोमा नहीं है या हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो यू कैन ट्राई, इसमें इतना कोई फर्क नहीं है। यू कैन ट्राई फॉर 5 to 7 days, किसी को अच्छा हो जाता है। बट इन दैट केस, इन योर केस, वी हैव टू डिफरेंशिएट वेदर इट इज डायबिटीज मलाइटिस की वजह से और वेदर इट इज न्यूरोलॉजिकल ओवर एक्टिव ब्लेडर है। बिकॉज ये ओवर एक्टिव ब्लेडर है ना, वो मोस्टली सीन अराउंड द एज अराउंड 30 to 45 ईयर्स की लेडीज में बहुत देखने को मिलता है ओपीडी में। सो दैट्स वाई आई हैड पुट उसमें ओनली ऑक्सीब्यूटिनिन एंड टॉल्टेरेडिन, और टॉल्टेरेडिन दोनों में से जो भी आपको मिलता है अवेलेबल है, गिव फॉर 5 to 7 days, इट विल प्रॉब्लम विल इमीडिएटली सॉल्व्ड। बट ऑलवेज फर्स्ट चेक द यूरिन रूटीन माइक्रो। इन्फेक्शन है तो वो ट्रीट करो, नहीं है तो गिव दिस फॉर 5 to 7 days, पेशेंट विल रिकवर। Okay, now now we will talk regarding the urinary tract infection. तो increased UTI in female में urinary tract infection is very common. Why? Because of short urethra, close proximity of external urinary meatus to vulva and vagina, and due to sexual intercourse. So these are the factors leads to increased UTI in the female. The common organisms we found are E. coli, Pseudomonas and the Klebsiella. Commonest organism of causing urinary tract infection are E. coli, Pseudomonas and the Klebsiella. The clinical presentation, how they present to you, अभी उसमें एक एक लेना पड़ेगा। पहले बाहर का, दैट इज यूरेथ्राइटिस, ओनली यूरेथ्रल ओपनिंग पे इंफेक्शन है, यूरेथ्रा का इंफेक्शन है, देन इट इज कॉल्ड यूरेथ्राइटिस। फिर कई बार इंफेक्शन वहां से ऊपर जाके ब्लेडर में होता है, देन इट इज कॉल्ड सिस्टाइटिस। और देन वो अप जाता है और किडनी में करता है तो उसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। तो वेदर इट इज लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और वेदर इट इज अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, urethritis and cystitis are considered as a lower tract infection, while kidney infection is considered as a upper tract infection. तो अगर पेशेंट को यूरेथ्राइटिस है तो हाउ दे प्रेजेंट टू यू? In urethritis, patient have dysuria, painful micturition, increased frequency and pain during micturition. पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन होगा। अगर सिस्टाइटिस है तो सेम, बट पेन अकर आफ्टर मिक्चुरेशन।
वो एक डिफरेंस है. अगर यूरिथ्राइटिस है तो पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, सिस्टाइटिस है तो पेन आफ्टर मिक्चुरेशन होगा. पायलिटिस अगर किडनी इन्वॉल्व है तो पेशेंट विल प्रेजेंट विथ फीवर, चिल्स, राइगर and acute aching pain over loins. There is an increased frequency, urgency, and patient have symptoms of nausea and vomiting. So how UTI patient present to you? Investigation, urine routine micro, complete blood count, serum creatinine to know the kidney function, and if it's a recurrent case, go for urine culture and sensitivity. यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी आप कराते हो तो दे विल टेल यू द एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म एंड द सेंसिटिविटी ऑफ द ड्रग्स टू दैट ऑर्गेनिज्म इन दैट अ पर्टिकुलर पेशेंट. सो अगर रिपीटेड यूटीआई होता है तो ऑलवेज गो विथ यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी. मैनेजमेंट, हम एवरी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई वाले पेशेंट को एवरी टाइम वी कैन सेंड फॉर द कल्चर एंड सेंसिटिविटी. सो इन जनरल एंटीबायोटिक्स वी आर प्रिफर्ड. तो फर्स्ट कॉमन प्रिफर्ड एंटीबायोटिक इज नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, दैट इज द मार्टिफर. 100 milligram 1 BD for 7 days. The only side effect with nitrofurantoin is orange color urine. So when you give the nitrofurantoin to the patient, explain about discoloration of urine. Second choice is ciprofloxacin or the naprofloxacin or the norflox. न्यूअर में फॉस्फोमाइसिन सेचेट्स आर अवेलेबल. 3 ग्राम का एक सेचेट आता है विथ 1 ग्लास ऑफ वाटर. कैसे देने का? रात को सोते समय 1 ग्लास पानी में डाल के पी जाने का और पानी पीने के बाद यूरिन नहीं जाने का. एटलीस्ट 2 आवर शुड बी वेट. तो एंटीबायोटिक है वो ब्लेडर के लोकल लेवल पे काम करता है. तो इट इज मेनली फॉर सिस्टाइटिस होता है तो उसमें इट गिव्स द वंडरफुल रिजल्ट फॉस्फोमाइसिन. नॉर्मल में एक सचेट, बट सिवियर है अगर पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम है तो 3 सचेट्स ऑल्टरनेट डे पे देते हैं. देन द सिफोपेराजोन कैफ्टम टैबलेट 1 BD फॉर 7 days. You can give levofloxacin for 5 days and norfloxacin for 5 days. अगर आप मुझको मेरा these are the common antibiotics we are using in UTI because everyone using their own. My preference of choice in my clinic is nitrofurantoin, Martifer. Always I fond of with giving the nitrofurantoin because what happen? Ciprofloxacin, norfloxacin, all are the drugs that most of the patient are resistant to it. So that's why for UTI I will always stick to the nitrofurantoin 100 milligram 1 BD for 7 days. एंड अभी न्यूअर में आया जो फंसी पेशेंट है जिसको मेडिसिन नहीं लेनी है उसको फॉस्फोमाइसिन सचेट. माइल्ड केस है 1 सचेट, सिवियर है तो 3 सचेट्स. एक्सेलेंट रिजल्ट. तो देन अगर रिकरेंट है तो देन यू हैव टू गिव फॉर अकॉर्डिंग टू द सेंसिटिविटी. अगर लॉन्ग टर्म यूटीआई है तो उसमें हम नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन मार्टिफर 1 BD फॉर 21 डेज के लिए कई देते हैं कई बार. तो गिव्स द ट्रेमेंडस गुड रिस्पॉन्स. इतना ध्यान रखना कि आप जब भी यूटीआई का मैनेजमेंट करते हो तो गिव इट फॉर एटलीस्ट 5 to 7 days, नॉट फॉर 2 to 3 days. If along with hematuria, give the antifibrinolytic agent that is the tranexamic acid 1 TDS for 5 days. If associated with pain, Dynapar for 3 days. And acidic urine है तो give urine alkalizer citral का या citrosoda sachet. So this completes our UTI. Questions? Dr. Suruchi and Dr. Prerna? Okay, Dr. Suruchi.
हाँ पूछिए, कोई बात नहीं। हाँ पूछिए, बोलिए। हम्म। हम्म। पता लगता है ना, कैंडिडा तो बहुत अच्छी तरीके से पता लगता है। कैंडिडा में अगर आप एग्जामिन नहीं करते हो तो भी, मैंने बोला ना कि पेशेंट को, आप वजाइनल इन्फेक्शन की बात कर रहे हो ना? हेलो। हाँ, तो वजाइनल इन्फेक्शन में अगर कैंडिडा होगा तो पेशेंट का प्रेजेंटेशन कैसा होगा? वाइट थिक कर्डी डिस्चार्ज। अगर पेशेंट नहीं बताता है तो आपको पूछने का, मैंने आप भूल गए होंगे, मैंने सिखाया था कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट। तो अगर पेशेंट नहीं बोलता है तो आप पूछिए कि डिस्चार्ज कैसा है? थिक वाइट कर्डी डिस्चार्ज विथ सिवियर ईचिंग इज द इंडिकेशन ऑफ कैंडिडा। तो पेशेंट को पूछो कि कैसा डिस्चार्ज है। अगर थिक वाइट कर्डी डिस्चार्ज है, कर्डी यानी दही जैसा, देन इट्स अ कैंडिडा। अगर थिन 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 फ्रोथी या लाइक अ फॉर्म जैसा डिस्चार्ज है, येलोइश ग्रीन डिस्चार्ज है, देन इट इज ट्राइकोमोनास। अगर वाटरी डिस्चार्ज है, पानी जैसा डिस्चार्ज है, एंड फाउल स्मेलिंग है, तो बैक्टीरियल वजाइनोसिस। सो दिस वे हाउ वी डिफ्रेंशिएट कि उसको कैंडिडा है। एग्जामिन करो तो आपको तो पता चलेगा। एकदम वो दही कैसा होता है, ऐसा डिस्चार्ज होता है, तो दैट इज कैंडिडा। पर अगर आपके पास एग्जामिनेशन फैसिलिटी नहीं है, आप नहीं करना चाहते हो या पेशेंट नहीं करवाना चाहता है, देन सिंपली आस्क द क्वेश्चन। सो थिक वाइट कर्डी डिस्चार्ज associated with severe itching is characteristics of candida। एंड अगर थिन ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज है एसोसिएटेड विथ इचिंग और बहुत फाउल स्मेल करता है, देन इट इज ट्राइकोमोनास। क्लियर? ओके, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हम्म। 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 देखिए, इट्स वेरी कॉमन। इचिंग है ना, तो कई बार क्या होता है कि पहले तो जो भी इचिंग का पेशेंट हो ना, उसका ऑलवेज गो फॉर आरबीएस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट को पता नहीं होता है, उनको ऐसे कैंडिडा रहता है और इसमें कई बार डिस्चार्ज नहीं रहता है और उसको इचिंग का प्रॉब्लम रहता है। तो फर्स्ट तो उसका चेक फॉर आरबीएस, ठीक है। दूसरा, इट कुड बी ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। ऐसे केस, हाँ डॉक्टर सुरुचि, इट कुड बी ड्यू टू हाँ, इट कुड बी ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। तो पेशेंट को बोलो कि अच्छे कॉटन के धोए हुए कपड़े पहने, पहले तो हाइजीन रखे। दूसरा, ऑलवेज गिव देम इंटीमेट हाइजीन वॉश। मैंने बोला था वी वॉश आता है, तो वो वजाइनल पीएच मेंटेन करता है, एक हम वो दे सकते हैं। दूसरा, कैंडिड बी क्रीम, भले उसको नहीं है बट उसमें बैक्लोमिथासोन होता है, तो उसकी वजह से इचिंग का रिलीफ होने पे बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो गिव इट कैंडिड बी क्रीम। और अगर वो पोस्ट मेनोपोजल है, एजेड पेशेंट है, तो इट इज़ मेनली ड्यू टू लैक ऑफ सिक्रीशन, इस्ट्रोजन की कमी के कारण है। तो ऐसे केसेस में इवालॉन क्रीम बहुत छोटा सा डेली लगाने का, अच्छा हो जाएगा, फिर हफ्ते में 2 बार और फिर हफ्ते में 1 बार। मैम जो यंग गर्ल्स होती है, हाँ। मतलब 26-25 ईयर्स में, है ना, तो अगर उनको ये प्रॉब्लम है, उनको हम सिर्फ कैंडिड भी देते हैं,
कैंडिड भी सिर्फ आउटर एरिया पे अप्लाई करना है ना, अंदर हाँ तो नहीं हाँ, लगाना? नहीं, आउटर ही ऑलवेज। अभी यंग गर्ल्स है तो ऑलवेज अप्लाई ऑन आउटर साइड। तो उसको भी आप सिंपल, जो यंग गर्ल्स होती है ना, उसमें आप 3 चीज़ें आप करो। एक तो गिव इट वजाइनल वॉश, उसको अच्छी तरीके से यूज़ करने का बोलो कि हाउ टू यूज़ द वजाइनल वॉश, बिकॉज 3 मिनट्स आउटर साइड अप्लाई करने का एक्सटर्नल पार्ट्स पे, देन 3 मिनट्स रखने का, वॉश विथ वाटर, देन जेंटली ड्राई विथ नैपकिन। यूज ओनली कॉटन वॉशेबल अंडरवियर एंड देन अप्लाई दिस कैंडिड बी क्रीम। अगर आपको साथ में इरिटेशन या पेशेंट को ऐसा लगता है तो गिव L-Diavan टैबलेट फॉर 5 days। अदरवाइज सिंपल वजाइनल वॉश, कैंडिड, कौन सी टैबलेट मैम? L-Diavan, सेट्रिजिन, L-Diavan, लिवोसेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन आती है ना वो, यस मैम, यस। हाँ, फॉर 5 days। और अगर यंग गर्ल्स है तो ऑल्सो गिव गुड मल्टीविटामिन फॉर 1 month, बिकॉज समटाइम्स माल न्यूट्रिशन, पुअर हाइजीन की वजह से भी ये सब होता है। सो गिव गुड मल्टीविटामिन फॉर 1 month, वजाइनल वॉश, कैंडिड बी क्रीम, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि इट इज ड्यू टू सर्टेन एलर्जी रिएक्शन, गिव L-Diavan फॉर 5 days। ओके मैम, क्लियर? यस मैम। Okay, anyone has the doubt? Ma'am, there is only burning in micturition. कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बर्निंग होता है। तो उसमें हम क्या इंटरनल मेडिसिन दे सकते हैं या फिर कुछ एप्लीकेशन के लिए भी? देखिए, अभी पेशेंट को, कई पेशेंट्स होते हैं कि उसको बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, ठीक है। तो पहले तो बर्निंग मिक्चुरेशन इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ यूटीआई। तो आपको पहले उसमें यूटीआई तो क्लियर करना पड़ेगा। बर्निंग मिक्चुरेशन समटाइम्स इट कुड बी ड्यू टू यूरिन इन्फेक्शन और इट कुड बी ड्यू टू वजाइनल इन्फेक्शन। तो पहले ऐसे केसेस में हम ऑलवेज गो फॉर यूरिन रूटीन माइक्रो। अगर यूरिन रूटीन माइक्रो में बैक्टीरिया नहीं आता है, यूरिन नॉर्मल होता है, देन चेक फॉर पीएच, पीएच ऑफ यूरिन। उसमें लिखा होगा एसिडिक यूरिन। अगर पेशेंट को एसिडिक यूरिन है, देन ओनली जस्ट यू हैव टू गिव द यूरिन अल्कलाइजर, सिताल लिक्विड, सित्राल का या सित्रो सोडा सचेट्स या ये। तो एसिडिक यूरिन में यू हैव टू गिव एंड गिव इट फॉर एटलीस्ट 5 to 7 days। हम भूल कहाँ करते हैं कि ओनली वी गिव फॉर ओनली 1 to 2 days। सो अगर उसकी एसिडिक पीएच हुई है तो गिव इट फॉर 5 to 7 days। देन ऑल्सो अगर आपको लगता है कि इट कुड बी समटाइम्स यूटीआई एसिडिक यूरिन में बी एसोसिएटेड विथ वजाइनल इन्फेक्शन, तो ऐसे केसेस में जस्ट गिव सिंपल वजाइनल टैबलेट्स। अगर वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है तो दूसरा कुछ नहीं देना है, तो गिव द वजाइनल टैबलेट दैट कवर्स एवरीथिंग। सो मैंने बताया था कि क्लीड वीएल करके आती है, उसमें एवरीथिंग इज देयर। कैंडिडा कवर करेगा, आपका सब कवर करेगा। तो ओरल नहीं देना है तो एटलीस्ट गिव वजाइनल टैबलेट, सित्रो सोडा, ये दो आपको आप दे सकते हो। बिकॉज बर्निंग मिक्चुरेशन इज ओनली बिकॉज ऑफ एसिडिक यूरिन and if it could be associated with vaginal infection. Clear? Okay. Yeah, clear. Anyone have the question? मैम, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैम अगर वेजाइनल एरिया पे कई लोग कंप्लेन करते हैं मैम कि छोटे छोटे दाने से निकल आते हैं, तो उसका रीजन क्या है मैम? देखिए, अभी जो दाने दाने जैसा निकलता है तो आइदर इट कुड बी, मोस्टली इट इज एलर्जिक रिएक्शन। कुछ ऐसा अंडरवियर पहना है या कुछ ऐसा केमिकल अप्लाई कर दिया है। कई बार वो लोग ये वीट क्रीम आता है, हेयर रिमूवल क्रीम आता है, वो अप्लाई कर दिया होता है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। तो मेनली इट इज एलर्जिक। तो एलर्जिक है तो L-Diavan फॉर 5 days विथ कैलामाइन लोशन। और समटाइम्स इट कुड बी ड्यू टू हर्पीस। अगर वो पेनफुल है
तो हर्पीस जेनिटलस नहीं भूलना है हमें। तो ओनली 2 रीजंस आर देयर, आइदर इट कुड बी एलर्जिक और आइदर इट कुड बी हर्पीस जेनिटलिस। हर्पीस होगा तो इट इज एसोसिएटेड विथ पेन, पेन उसको होगा, और एलर्जिक होगा तो ओनली दाने दाने जैसा दिखेगा। तो इन सच केस गिव सेट्रिजिन, मैंने बोला लिवोसेट्रिजिन, रात को 1 गोली 5 दिन, एसोसिएटेड कैलामाइन लोशन। ठीक है, ओके मैम। एनीवन हैव्स द आइडिया, डाउट? तो टुमारो लास्ट डे है, जैसा मैंने बोला था कि कल, हाँ मेरा एक टॉपिक अजय आपका रह गया है, तो कल हमको वो लेना पड़ेगा। तो केसेस तो मेरे मीन्स नहीं हो सकते हैं, तो मैं ऐसे ओरली आपको पूछ लूँगी, या मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप लोग ही अपने क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि मैं बना उसका कोई मतलब नहीं है। आप प्रेजेंट कीजिए कि हाँ मैम ऐसा पेशेंट आया था, तो व्हाट वी विल डू और आई हैव डन दिस थिंग, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल। तो कल लास्ट डे है, तो हम लोग कल पूरा माइनर केसेस, स्पेशल टॉपिक्स ऑफ गायनिक लेने वाले हैं। तो उसमें वी विल टेक अ लेक्चर ऑन फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोसिस्टिक डिसीज ऑफ ब्रेस्ट एंड ट्रीटमेंट फॉर मेनोपोजल सिम्टम्स। तो मैस्टाइटिस, एवरीथिंग वी विल कवर इन स्पेशल टॉपिक्स ऑफ गायनिक। तो कल वो पूरा लेंगे, और आपके जो भी डाउट्स है दैट वी विल गोइंग टू सॉल्व इन टुमारो। तो जितने भी आपके माइंड में डाउट है, तो एक कागज पेन में लिख के रखिए, और एवरीवन कैन सॉल्व योर डाउट्स। ओके मैम, हाँ बोलिए, या मैम, बोलिए बोलिए। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, हाँ तो फिर मुझे वो 2-3 टॉपिक्स जो है जो सबसे पहले हुए हैं, हाँ, तो उसमें अगर कुछ डाउट रहेगा तो वो पूछ सकते हैं, या फिर नहीं समझा तो? नहीं डेफिनेटली, इसलिए तो मैंने बोला कि आप मेरा लेक्चर लाइव सुनिए या आप रिकॉर्डिंग सुनिए, सेम ही है, मैं यही लेक्चर आपको देती हूँ। तो आप वो सुन लीजिए, उसमें जो भी डाउट है वो कल क्लियर कीजिए। कल भी क्लियर नहीं होता है तो फिर मुझे अगले मीन्स नेक्स्ट वीक में कभी भी मेरे से टाइम लेके आप कभी भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं बेटर हूँ कि कल मैं पूरा टाइम दे रही हूँ आपको, तो अच्छे तरीके से आप आज टाइम मिलता है तो आप सुन लीजिए, जो भी पूरा 10 दिन में जो भी डाउट्स है, या इस टॉपिक के अलावा भी गायनिक में आपको डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम। ये मैंने तो मेरे कॉमन टॉपिक्स लिए हैं, इसके अलावा आपको जो भी आपको केसेस है या आपको उसमें समझ में नहीं आता है, तो मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि आप एक पेन, नोट पेन लिख के सब लोग लिख लीजिए। सो टुमारो इसलिए मैंने चेंज किया कि मैं अपने केस बताऊँ, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको कौन सा प्रॉब्लम है, आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, मैं बोलती रहूँ उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको जहाँ पे भी गायनिक में डाउट है तो राइट डाउन योर क्वेश्चंस एंड देन आस्क टुमारो, सो वी विल गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी पर्सन डाउटिंग प्रॉब्लम। और आपके पास पूरा रिकॉर्डिंग है पूरे गायनिक लेक्चर्स का अभी तक का? मैम एक दो नहीं है, 9th का जो आपने स्टार्ट किया था ना, वो नहीं मिला है। अच्छा, 9th का क्या था आपको पता है, क्या था कि कुछ? 9th तो डेमो नहीं, क्लास नहीं। था, ओनली एनाटॉमी था, इसलिए उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि ओनली जस्ट आई टेक अ एनाटॉमी। कोर्स तो 10th से स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट 10th से है। हाँ, तो वजाइनल इन्फेक्शन है वो फर्स्ट टॉपिक है। ओके। वजाइनल इन्फेक्शन से सब है आपके पास? हाँ, मैं एक बार वापस चेक करती हूँ, बिकॉज देख 10 लीजिए। और 11 का तो मुझे दिखा था। अच्छा, आप एक बार देख लीजिए वजाइनल इन्फेक्शन से। और मैंने अपना जो कोर्स मॉड्यूल है ना, उसमें जितने टॉपिक है ना वो सारे कवर हुए, उसमें से आपके पास कुछ नहीं है तो लेट मी इन्फॉर्म, आई विल सेंड इट टू यू। ओके मैम, या ठीक है। सो अभी हम, हाँ अभी हम मैं क्लोज करती हूँ। सो सी यू टुमारो 3 PM, ठीक है। और आप लोग सब अपना फुल नेम भेज देना फॉर सर्टिफिकेट, जो आपको सर्टिफिकेट पे चाहिए तो ग्रुप में नेम भेज देना। ओके मैम। ओके। डॉक्टर राम, हैव यू जॉइंड? डॉक्टर राम?
Triloki. Okay, so I am ending the meeting.